Dear students, in this module, I'm going to share with you how we can extract portions of data frames. All right. Um, First of all, you should notice that data frames are printed to the console in rows and columns, so they look somewhat like a matrix, right? Rows and columns. So we can also say that this is the spreadsheet style. I'm sure you know that. And I want to say, as is written in your own book, that this natural spreadsheet style makes it easy to read and manipulate datasets. What do we mean by manipulating datasets? I have taken this from the internet and the link is there. It is things like adding column names, adding additional variables, meaning additional columns, summarizing the data in various ways. For example, the mean of one particular column, if it's a numeric column, merging and combining two or more data sets. तरह तरह की चीज़ें हैं जो इस टर्म के अंडर आती हैं. All right? And according to our requirements, we would be doing whatever we need to do. So, in this particular module, I'm going to talk about the simplest thing that we could do. One of the simplest things. And as I said earlier in the beginning, that what is that? That we would like to extract portions of the data frame. For whatever reason, हमें किसी वजह से उसकी ज़रूरत है और हम उसको extract करना चाहते हैं. So how do we do that? As is written in your book, we can do that by specifying the row and column index positions. वो जो इंडेक्स है वो हमें बताएगा कि कौन सी रो और कौन से कॉलम के अंदर वो एंट्री जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट यानी कि हम करना चाहते हैं. All right, so let's look at the example that I did in the previous module also. This is the data of the 5 persons whose names, ages, and also the gender or the sex of the person for each person is available. So for this one, as we did previously, if we execute this code that you can see on the slide, you will get the data frame and it's right here. So ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, this is the complete data frame as we created in the previous module, exactly the same. So given this complete data frame, it's a very small one, 5 rows, 3 columns. Suppose that we want to extract the age of Louise. तो इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? I need to know the position of that entry. और अगर वो पोजीशन मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ तो उसके बाद ये सिंपल कोड है जिसके ज़रिए वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और आप उसको प्रिंट भी कर सकेंगे. When I say print, I hope you know that I mean that it will be visible on the console. तो ये इस केस में आप देखिए, ये हमें नज़र आ रहा है कि लुईस जो है और उसकी एज जो है, सो दिस इज़ द सेकंड रो एंड द सेकंड कॉलम. इस कॉलम के सिलसिले में मैं आपको ये कह दूं कि ये जो 1 2 3 4 शुरू में सीरियल नंबर्स दिख रहे हैं उनको आप एज अ कॉलम काउंट नहीं करेंगे. आपके जो असल वेरिएबल्स हैं, नेम, एज, सेक्स, उस हिसाब से आप काउंट करें. तो ये जो लुईस की एज हमको चाहिए तो हम आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. तो जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद स्टूडेंट्स, all you have to do is to write this. My data क्या चीज़ है? It is the name that you gave to your data frame. जब आपने वो पूरा लंबा कोड लिखा तो उसका नाम आपने रखा my data. हमारे ऑथर ने ये रखा हुआ है, वरना हम कुछ भी रख लें. तो वो हमने अगर यही रखा तो फिर आप वही नाम रखें, लिखें और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट द राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो जो आपने सेकंड
रो और सेकंड कॉलम आइडेंटिफाई किया था वो आप उसके अंदर लिख दें 2,2 कॉमे से पहले वाला रो बताता है कि कौन सी रो और कॉमे के बाद वाला कॉलम. So I would like to execute this for you. If I go to my R file, of course I will need to first run that entire code क्योंकि पहले मेरा वो डेटा फ्रेम आएगा तो फिर उसके बाद ही मैं एक्सट्रैक्ट करूँगी ना. So I will just simply quickly go back and copy this code which I have already discussed with you in detail in the previous module. तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर रही हूँ so that I get my complete data frame, and once I have got that then I will extract. ये my data इसका नाम लिखा और ये सारा वही कोड लिख आ गया. अब दोबारा से जब मैं टाइप करती हूँ my data और एंटर करती हूँ तो ये देखिए ये आपके सामने कंप्लीट डेटा फ्रेम आ गया. अब मैं वो जो एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ उसके लिए मैंने माई डेटा उसका नाम दोबारा लिखा और अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया, एंड देन आई कम बैक इनसाइड दैट एंड आई राइट 2,2. जो भी आपने निकालना है आप कर लें, लेकिन इस वक्त हम ये वाला कर रहे हैं. और उसके बाद बाहर आने के बाद आई एम गोइंग टू एंटर एंड देयर यू आर. ये आपका 40 जो लुइस की एज है ये आपके सामने उस बड़े स्ट्रक्चर में से बाहर आपने निकाल ली, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर ली. इसके बाद ये भी नोट करें कि अगर आप सिर्फ एक अकलौता जो है वो नहीं करना चाह रहे बल्कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ निकालना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करें. ये देखिए, इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम, किसी भी वजह से इफ़ यू वांट टू डू दैट, फिर आप कैसे करेंगे. देखिए उसका बुनियादी तरीका तो वही है कि आप लिखेंगे माई डेटा, इस केस में ज़ाहिर ये नाम है तो यही लिखेंगे, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और बंद भी हो गया स्क्वायर ब्रैकेट. लेकिन अब उसके अंदर क्या डालना है आपको. देखिए आपने कहा था थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम. यहाँ पे ये एलिमेंट के लफ्ज़ को नहीं पहचानता, इसको ये बता दें कि रोज कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं. तो अब हम वापस अपने कंप्लीट डेटा फ्रेम पे जाते हैं और थोड़ा सा इसको गौर से देख लें. इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. देखें थर्ड कॉलम यही वाला है ना, जेंडर या सेक्स. तो इसमें आप देखें कि थर्ड एंट्री मेग की सेक्स जो है, फोर्थ एंट्री क्रिस की, और फिफ्थ एंट्री स्टीवी. तो अब ये रोज़ ही हो गई ना. जो उसकी उस कॉलम की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एंट्री है स्टूडेंट्स, वो रोज़ ही तो हैं. थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, और कॉलम जो है वो एक ही है, ये थर्ड वाला. सो देयरफॉर नाउ व्हेन यू राइट दिस कोड, यू राइट माई डेटा, ओपन योर स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन यू राइट 3:5, क्योंकि आपको पता तो है कि 3:5 का मतलब है 3,4,5, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, उसको इकट्ठा, यानी कि हम या तो सी लिखते, फिर सी, फिर वो राउंड ब्रैकेट, फिर उसके अंदर 3,4,5, वरना आप इस तरह वो ये जो दूसरा सीक्वेंस वाला होता है 3:5, और कॉमे के बाद रो कॉलम वो तो एक ही है ना, एंड दैट इज़ द थर्ड वन. तो मैं इसको अब कॉपी करती हूँ जी यहाँ से, और मैं आपके सामने इसको रन कर देती हूँ जी. लेट मी गेट टू माई आर फाइल एंड लेट मी पुट इट ओवर हियर. ये देखिए उसने साथ ही इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, और वो देखें कि वही है FMM. अभी हमने देखा था थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वॉज FMM, और साथ ये बता रहा है कि दिस इज़ अ फैक्टर वेरिएबल. So I think you must practice, practice and practice, and then it will become very simple for you.